everyone, how are you? So this is my second lecture series on the chapter Life Process class 10. Yesterday we have discussed about nutrition and various modes of nutrition. We have also discussed about the autotrophic mode of nutrition. So today I am continuing with the mode of nutrition and I will be specifically dealing with the heterotrophic mode of nutrition and its types. Okay, so as you know, the difference between the autotrophic and heterotrophic is auto means self means they are able to prepare their own food by themselves, right? But when we talk about heterotrophic mode of nutrition, it means it is a mode of nutrition in which an organism takes food from another organism. It means there is a dependency. So this organism takes food from another organism, right? So this is the basic difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Today we will be talking about different types of heterotrophic mode of nutrition. First is saprophytic, then we will talk about holozoic, then we will talk about parasitic mode of nutrition, right? So we will deal about each one of them in detail. Let's first talk about the saprophytic mode of nutrition. What are saprophytes? Which feed on dead and decomposed organic matter. They are saprophyte. So similarly is the saprophytic mode of nutrition, wherein the organisms, they secretes the digestive juices on the food, right? They will secrete the digestive juices on the food, which will help in breaking down the complex organic matter into the simpler matter, right? So then the food is digested and ingested by the organism. The most common examples are decomposers, right? I hope you know the difference between digestion and ingestion. If you do not know the difference, तो मैं आपको बता देती हूँ. Digestion का मतलब, सबसे पहले ingestion देखते हैं. Ingestion का मतलब होता है, as the word itself suggests, ingestion मतलब खाना अंदर लेना, that is ingestion. The process of taking in food is called as ingestion, right? When we talk about digestion, मतलब एक बार आपने अंदर ले लिया and then you can start with the process of digestion. Digestion का मतलब क्या होता है? Breaking down the complex food material into the simpler food materials. ठीक है, तो अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है. किसी में क्या होता है कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे. किसी में क्या होता है कि इंजेक्शन पहले हो जाता है और फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है, और किसी में डाइजेशन पहले होता है और फिर इंजेक्शन होता है, लाइक इन केस ऑफ saprophytes, right? Now let's talk about the holozoic mode of nutrition. In this, digestion happens inside the body of an organism, right? It means first ingestion will take place. It means taking of food inside the body, and then digestion will take place. That is a holozoic mode of nutrition. और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, राइट? काउ, बफेलो, they follow this process of holozoic mode of nutrition. Okay, let's talk about the another mode of heterotrophic nutrition, that is parasitic mode of nutrition. Parasitic में क्या होता है? The organism lives inside or outside another organism. तो अगर वो अंदर या बाहर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह रहा है, तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज द होस्ट. जैसे लेट्स से हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो वी आर द होस्ट, राइट? और जो गेस्ट आ रहा है, आई विल नॉट से कि वो पैरासाइट है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि वी आर एक्टिंग एज अ होस्ट, राइट? सो पैरासिटिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म. सो जिसके अंदर या बाहर वो रह रहा है, दैट इज होस्ट, दैट इज एक्टिंग एज अ होस्ट, और फिर वो उसी से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है. सो दैट इज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अब आप आगे जाके पढ़ेंगे एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स. आई होप आपने पहले जो 6, 7, 8 क्लासेस थी उसमें भी आपने पढ़ा होगा. एक्टो मतलब बाहर रहना, एंडो मतलब अंदर रहना. फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दैट इज टिक. जैसे डॉग्स के ऊपर आपने टिक्स देखे होंगे, तो वो दैट आर एक्टिंग एज एन एक्टोपैरासाइट, यानी कि दैट टिक, हम बोलते हैं ना जैसे डॉग्स को टिक फीवर हो जाता है, ठीक है? तो टिक फीवर हो जाता है मतलब उनके ऊपर टिक्स आती हैं, वो उनको उनके स्किन पे चिपक जाती है बाहर आके,
and then they derive its nutrition from the dog. So dog is acting as a host, right? और वो जो tick है वो acting as a parasite. It is deriving its nutrition from the dog body or the skin. Okay, so these are the different types of heterotrophic mode of nutrition: saprophytic, holozoic, and parasitic. I hope you understood this. Okay, now let's talk about the mode of nutrition in amoeba. Okay, when the word amoeba comes, तो आपको क्या पता चलता है amoeba से? It is a unicellular animal, right? Next important thing is इसके अंदर कौन सा mode of nutrition follow होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, राइट? तो इसके अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इंजेशन फॉलोज डाइजेशन. एज सुन एज द वर्ड होलोजोइक कम्स, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले इंजेशन होता है एंड देन डाइजेशन टेक प्लेस. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको बताती हूँ. इसके अंदर जब भी न्यूट्रिशन इन अमीबा आता है, ये बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. इसमें 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं. 1 इज इंजेशन. इंजेशन मतलब अगेन टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी. देन कम्स डाइजेशन. मैंने आपको बताया डाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन. डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? सिंपलर फूड मटेरियल्स में. तो सबसे पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन के बाद जब वो सिंपलर मटेरियल में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन होगा. उसके बाद एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर फूड, राइट? मे बी फॉर एनर्जी, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, एक्सेट्रा. देन कम्स इजेशन. फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड. इंजेशन का मतलब है टेकिंग इन. इजेशन का मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, दैट इज रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. सो आपको बस जब भी न्यूट्रिशन इन अमीबा का क्वेश्चन आता है, आपको इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है. फर्स्ट यूनिसेल्युलर है, सेकेंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 5 स्टेप्स. आप इन 5 स्टेप्स को इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेप्स लिखेंगे एंड देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन देम. आप इन 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये 5 स्टेप का जो सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए. यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and then egestion. Now, when you will write these 5 steps, उसके बाद आप एक छोटा सा डायग्राम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, because you know, as we know that bio is incomplete without diagram. अगर आप बोर्ड एग्जाम में डायग्राम नहीं बना रहे हैं, it means you are not well versed with the subject of biology. Okay, even if it is not asked, I would recommend you to make a small diagram. ठीक है? Now again, डायग्राम के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी after completion of the chapter. Just one thing I wanted to say is it should not be beautiful, rather it should be scientific. Okay, so scientific की बात करते हैं तो हम ये steps के साथ साथ ये छोटा सा डायग्राम हम दिखा सकते हैं. Although यहाँ पे इतनी clarity नहीं है, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, तो once I'll buy the big one, then clarity ज्यादा आएगी. बस मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, because everything is written in the books also. See, this is amoeba. Now this is the nucleus. और ये आया एक फूड पार्टिकल. ठीक है? ये अमीबा है. अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है. यहाँ पे आया, दिस इज अ न्यूक्लियस. यहाँ पे आया एक फूड पार्टिकल. सो व्हाट अमीबा विल डू इज, अमीबा उस फूड पार्टिकल को ग्रैब करेगा. ग्रैब करने के लिए वो एक उसका जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का, वो क्या करेगा? ऐसे प्रोट्रूड आउट हो जाएगा, लाइक यू कैन सी हियर. इट इज प्रोट्रूडिंग आउट. दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्यूडोपोडिया. ठीक है? तो वो एक स्यूडोपोडिया का स्ट्रक्चर बना लेगा. द सेल मेम्ब्रेन विल प्रोट्रूड आउट टू ग्रैब द फूड. सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगा फूड को ग्रैब करने के लिए. तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, राइट? नाउ दिस फूड पार्टिकल विल मूव इनसाइड द अमीबा, यू कैन सी, एंड दिस बिकम्स द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल का मतलब क्या है? सिंपल, फूड पार्टिकल होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है? वाटर होता है, राइट? नाउ दिस फूड पार्टिकल यू कैन सी इट इज इनसाइड. नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल बी देयर. फिर वहां पे क्योंकि इंजेशन पहले हुआ है और उसके बाद डाइजेशन होगा, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो अब क्या होगा? इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा. यानी कि एक बार उसने अमीबा ने फूड पार्टिकल को ग्रैब कर लिया है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. नाउ डाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड इट. डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होंगे, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद जो भी फूड उसको एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बाकी सारा रिलीज आउट, इजेशन विल टेक प्लेस. सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये 5 स्टेप्स के साथ साथ ये डायग्राम जरूर शो कर दें, ताकि एग्जामिनर को एक क्लैरिटी हो जाए कि बच्चे को साइंटिफिक चीजें पता है.
ओके, सो एज ऑफ नाउ मैंने आपको यही समझाया, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स, एंड ऑल्सो इन specifically we talked about nutrition in case of amoeba. So stay tuned for my next lecture. Maybe वो lecture मैं PowerPoint presentation के थ्रू लूंगी because उसमें थोड़ा सा diagram है and I am bad at drawing in drawing the diagrams. So stay tuned for my next lecture. Thank you so much. Bye bye. Take care.